Friends, how are you all? I hope you are good and learning well. In this video, we'll be starting with chapter number 15, active and passive voice. What is active and passive voice? Basically here again you have to focus on verb, object and subject. So while reading example, you will understand active and passive voice. Let's read the following sentences. Ram eats an apple. This is active voice. Next is an apple is eaten by Ram. Passive voice. Second, Mona is driving a car. Active voice. Next, a car is being driven by Mona. That is passive voice. In the above sentences, word order and form of construction has undergone a change. यहाँ पे above sentence में क्या है? सिर्फ वर्ड्स का ऑर्डर, ठीक है, वो चेंज किया गया है बट मीनिंग इज सेम. वी हैव द डूअर, हेयर इट इज डूअर, डज नहीं, दिस इज डूअर. आप यहाँ पे डूअर लिखोगे, नॉट डज, डूअर. डूअर राम एंड द फॉर्म ऑफ वर्ब शोज दैट समथिंग इज डन. बाय whom? बाय राम. यहाँ पे क्या फर्स्ट सेंटेंस में दिखा रहे हैं कि समथिंग इज डन बाय राम, तो राम क्या हुआ? डूअर हुआ. द रिमेनिंग ऑफ बोथ सेंटेंसेज 1 and 2 इज द सेम. हेयर राम इज द सब्जेक्ट, डूअर ऑफ एक्शन. हेयर अगेन डूअर ऑफ एक्शन, डज नहीं आएगा, डूअर ऑफ एक्शन. But in sentence second, an apple is the subject or the receiver of the action that was eaten. तो यहाँ पे passive voice कब आता है? इस सेकेंड वाली पॉइंट से आता है, this one, कि कोई ऐसा चीज़ जो कि रिसीव कर रहा है एक्शन. ओके, जैसे कि एप्पल रिसीव कर रहा है. रिसीव कौन कर रहा है? एप्पल. कर कौन रहा है? वर्ब या एक्शन? राम. तो नाउ हियर एप्पल क्या चेंज हो जाएगा? सब्जेक्ट में. क्यों? क्योंकि वो रिसीवर है एक्शन का. सो वर्ब इज सेड टू बी एक्टिव व्हेन द पर्सन और द थिंग डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट एक्ट्स और इज एक्टिव. सो द वर्ब ईट इज एक्टिव. The verb said to be passive voice when the things or person denoted by subject do not act but suffer or receive the action. जो भी रिजल्ट उस एक्शन का होगा, जिस चीज़ पे होगा, वो क्या हो जाएगी? पैसिव वॉइस. या फिर किसी के ऊपर किया जाएगा वो एक्शन, वो भी क्या आ जाएगा? पैसिव वॉइस. सो द वर्ब ईटन इज द पैसिव, और यू कैन से पैसिव वॉइस. A transitive verb has two voices, active voice and passive voice. When the subject does something, the verb is said to be active voice. Okay, कब आता है? जब subject खुद कोई verb या कोई subject means person कोई काम कर रहा है, तब वो verb क्या होगा? active voice में होगा. Okay, let's see example. The hunter shot the lion. I help my friends. The gardener waters the plants. Somebody picked my pocket. In the above sentences, the words the hunter, I, the gardener, somebody are the subject. They are active. Why they are active? Because they are doing some action. They are doing some kriya. They have done something. Shot, helped, waters and picked. Hence, these are in active voice. Second, passive voice. The subject is acted upon. Subject क्या है? लास्ट में आएगा. यहाँ पे आप क्या देखोगे? एक्शन पहले देखोगे. Let's see with the example. The verb is said to be passive voice. The lion was shot by hunter. अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? जिसके ऊपर एक्शन किया गया है. एक है एक्शन करने वाला, एक है एक्शन रिसीव करने वाला. तो जिसने रिसीव करा एक्शन, अब वो सब्जेक्ट एक्ट करेगा. ओके, होगा नहीं है तो वो अभी भी ऑब्जेक्ट, क्योंकि एक्शन का जो रिजल्ट जिस पे है या एक्शन का जो आउटकम जो है वो हमेशा ऑब्जेक्ट है. यहाँ पे सिर्फ वो सब्जेक्ट की तरह लग रहा है क्योंकि सेंटेंस के फर्स्ट में दिया हुआ है. Let's see with the example.
The lion was shot by hunter. My friends were helped by me. The plants are watered by the gardener. My pocket was picked by somebody. In the above sentence, the lion, my friend, the plants and my pocket, none of them is active. यहाँ पे ये एक्टिव नहीं है, क्यों? क्योंकि ये एक्शन खुद कर नहीं रहे, इनके ऊपर एक्शन आ रहा है या जो एक्शन का रिजल्ट है वो ये सारे पिंक में दिए गए वर्ड्स हैं. They are merely the receiver. Merely means only they are receiver of action done by other, that is by hunter, by me, by the gardener, and by somebody. Hence these action or verb are in passive voice. So here is very simple formula कि आप एक्टिव वॉइस में क्या देखोगे, सब्जेक्ट पहले देखोगे, तब फिर वर्ब देखोगे, देन ऑब्जेक्ट. पैसिव वॉइस में क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट पहले आएगा, वर्ब देन सब्जेक्ट. लेट्स सी एग्जाम्पल. Anna painted the house. The house was painted by Anna. The teacher always answers the student's question. The student questions are answered by the teacher. Ali posted the video online. The video was posted online by Ali. Here again there is one more difference. What was this? Answer, answered. ओके यहाँ पे तो ये दो ही हैं. ऊपर अगर अपन इन एग्जाम्पल में जा रहे हैं, सो हेयर यहाँ पे है शॉट, यहाँ पे वॉज शॉट, हेल्प्ड वर हेल्प्ड, वाटर्स आर वाटर्स, पिग्ड वॉज पिग्ड. तो यहाँ पे क्या आई ये चीज़ें, सबसे पहले आपने वर्ब की फॉर्म चेंज होते हुए देखी है. एक्टिव वॉइस में फर्स्ट फॉर्म, जनरली फर्स्ट फॉर्म या फिर एस लगता हुआ देखोगे आप वर्ब के साथ. इन पैसिव वॉइस आप वर्ब की थर्ड फॉर्म देखोगे एंड यहाँ पे वॉज वर का ऐड देखोगे. वॉज वर अपन कब ऐड करते थे, वी हैव अर्लियर स्टडीड द टेंसेस, चैप्टर टेंसेस. तो जो टेंसेस में अपन ने रूल पढ़े हैं वही रूल आपको यहाँ पे यूज़ करने हैं. ओके, कैसे यूज़ करोगे आपको सेंटेंस पढ़ के पता चल जाएगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, पास्ट टेंस है. ओके, जब आपको सेंटेंस पढ़ के ये पता चल जाएगा कि ये प्रेजेंट टेंस है, तब आपको उसके रूल याद रहेंगे कि एस लगाना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है एंड फ्यूचर में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है. कहाँ पे वॉज आएगा, हैव आएगा, हैव बीन आएगा. सो ये सारी आप क्या करोगे जब आप इस चैप्टर को पढ़ोगे, अगेन आप अपना टेंसेस का चार्ट खोल सकते हो एंड यू कैन कंपेयर इट. ओके, सो लेट्स सी. ओके, सो हियर वी सी changing active voice into passive voice. We know the sentence is made up of the following parts: subject, verb and object. In this part we will be seeing how to change active voice into passive voice. So this is the chart I have taken. So this is द थिंग. आपको कैसे पता चलेगा वो सेंटेंस, वो वर्ब एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस है? विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वाइल वॉचिंग द वीडियो, और यू कैन पॉज द वीडियो एंड टेक द स्क्रीनशॉट. कि जब आपको प्रेजेंट इनडेफिनेट की बात करनी है आप डू डज का यूज़ करोगे, एंड पैसिव वॉइस प्रेजेंट की ही बात होगी, बट अगर उसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है तब आप वर्ड यूज़ करोगे इज, एम एंड आर. Okay, same with the all these thing. So I have taken, okay, now we'll be seeing how to change active voice into passive voice. Look at the sentence. Sentence क्या है आपका? Here. इसको अपन हटा देते हैं अभी. ये नीचे क्या लिखा है? Okay, so sentence is आपका माधव सिंग्स अ सॉन्ग. तो ये आपका क्या है? सेंटेंस है. अब इसको अपन ने कैसे देखना है
some simple rules of changing active voice sentence into passive voice sentence are replace the subject by the object. अब यहाँ पे आप देखोगे कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब है, माधव इज सब्जेक्ट, सिंग्स इज वर्ब, अ सॉन्ग इज ऑब्जेक्ट. तो आप यहाँ पे रिप्लेस करोगे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से. ओके, रिप्लेस करोगे ऑब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट एंड प्लेस बाय बिफोर अ न्यू ऑब्जेक्ट. अब यहाँ पे क्या करोगे, जो ऑब्जेक्ट है उसके साथ आप बाय लगाओगे. कैसे, आपने यहाँ पे ऊपर एग्जाम्पल में देखा है. Here if we'll take this example, the gardener waters the plant. I'll just zoom in. Okay, now see, this was object, this is subject, verb and this is object. अब यहाँ पे अपन ने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से रिप्लेस करा. ओके, नाउ बाय का यूज़ करा है, ठीक है, एंड इधर लास्ट में ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट यूज़ हुआ है. ओके, नाउ here is one more example of this. Look at the example. चित्रा writes a book. यहाँ पे मैंने कैसे चेंज करना है, ऑब्जेक्ट को लगाना है मुझे न्यू सब्जेक्ट की जगह. अ बुक इज रिटन बाय चित्रा, मुझे सब्जेक्ट के साथ यहाँ पे बाय लगाना है. सो इम्पॉर्टेंट रूल क्या है यहाँ पे आपके येलो बॉक्स में दिया हुआ है. The rules regulating change of form of verb vary according to the tenses of sentence. In the passive voice, we always use third form past participle of verb. आप जनरली यहाँ पे verb की थर्ड फॉर्म यूज़ होते हुए देखोगे. ओके, एंड यहाँ पे चेंजेस कैसे आएंगे, अकॉर्डिंग टू टेंसेस. आपका अगर जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में है तो आप उस टेंस के रूल्स यूज़ करोगे. ये मैंने आपको बता दिया. अकॉर्डिंग टू टेंसेस आपको समझना पड़ेगा कि ये सेंटेंस कौन से टेंस का है, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस. सो वील बी सीइंग नाउ दैट हाउ टू चेंज पैसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस इन द नेक्स्ट वीडियो. So that's all for this video. I'm not taking it further because you will get confused. You have to first see about the tenses. आप ये चैप्टर देखने से पहले tenses चैप्टर को रिवाइज करो, give it a quick revision and then do this chapter. Thank you so much for listening. Stay well.